Welcome back to Academic Classes Simply Science, a one-stop channel wherein all your doubts and queries relating to class 9th and 10th science can be easily resolved. ये part 3 of the 4-part series of videos है which deal with the chapter of life processes in class 10. This video goes into great depth relating to the working of the human heart or the blood circulatory process. To understand this, please look at the diagram in front of you. The only thing that you need to bother about this is this inner wall known as septum, and this entire complex diagram can be easily understood with the help of a flowchart. But before I go on to the flowchart and explain the entire process, a few things which I like to discuss about before. Now, there are 3 types of blood vessels in our body: arteries, veins and capillaries. Arteries are blood vessels which carry blood away from the heart. Veins are blood vessels which carry blood to the heart. There is the definition that arteries carry oxygenated blood is absolutely wrong. They do carry oxygenated blood, but they also carry deoxygenated blood. So to merely differentiate between arteries and veins as saying कि arteries में तो oxygenated blood होता है, veins में deoxygenated blood होता है और उसका बीच में कोई difference नहीं है, ये बिल्कुल गलत है. The only correct difference between the two is arteries blood heart से दूर लेकर जाती हैं. They carry blood away from the heart. Veins always carry blood to the heart. Veins always blood heart की तरफ लेकर जाती हैं. Arteries away. That is the correct definition. अब heart के 4 chambers होते हैं. 2 on the left side, 2 on the right side. और ये जो left और right side of the heart है, ये एक wall से separated है, known as septum. Septum keeps the type of blood separated from each other. On the left side of the heart, you'll have oxygenated blood. On the right side of the heart, you'll have deoxygenated blood. अब ये wall ना होगी तो दोनों mix हो जाएंगे, and as a result, आपकी जो blood will not be able to carry oxygenated blood to all parts of the body. और आपके you'll feel tired, fatigued, and you'll not be able to work properly. आपने सुना होगा कि हार्ट में होल हो गई है. हार्ट में होल होने का मतलब है कि सेप्टम के बीच में एक होल है जिसमें एज अ रिजल्ट जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मिक्स हो जाता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम कर देता है. एज अ रिजल्ट द बॉडी इज नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है और वो लंग्स के थ्रू बाहर नहीं जा पाता. नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ अ सेप्टम. So, a heart has 4 chambers, 2 on the right side, 2 on the left side. Upper chamber known as atrium or auricle. Lower chamber is known as ventricle. So, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. अभी हमने डिस्कस किया कि हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं: लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. और हमने अभी तक डिस्कस किया है कि there are 3 types of blood vessels. इसमें हमने 2 के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस किया: आर्टरीज और वेन्स. आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स ऑलवेज कैरी ब्लड टू द हार्ट. अब वेन्स में एक चीज और डिस्कस करने वाली है कि वॉल्स होते हैं. वॉल्स ब्लड को वन डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए कंप्रेस करते हैं. फॉर इंस्टेंस वॉल्स आपके ब्लड को कॉज करते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे. सो ब्लड causes the blood to flow only in a single direction. तो फॉर एग्जाम्पल आपके साइकिल ट्यूब में वॉल्व होता है जिसके थ्रू आप एयर भरते हैं. वो एक ही डायरेक्शन में एयर को भरने देते हैं. They only allow air to go into the tube but do not allow air to go out of the tube. तो वॉल्व्स का फंक्शन ये होता है कि वो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं और रिवर्स जाने में नहीं. एज अ रिजल्ट फ्लो स्मूथ रहता है पूरी बॉडी में ब्लड का. और वॉल्व्स जो होती हैं आर्टरीज में नहीं मिलती, वेन्स में मिलती हैं. सिमिलरली देयर आर 4 वॉल्व्स आपके जो हार्ट में होते हैं. लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व होता है. लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एओर्टिक वॉल्व होता है. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइक्युस्पिड वॉल्व होता है. और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पल्मोनरी वॉल्व होता है. इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बस उस डिस्कशन पे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और है. हार्ट जस्ट लाइक अ लंग इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर. लंग की तो प्रोटेक्टिव लेयर प्लूरा होती है, हार्ट की प्रोटेक्टिव लेयर पेरिकार्डियम होती है. इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम एब्रेजन.
and damage to its muscle. Now we can proceed on to the working of the human heart. ये एक सिंपल सा डायग्राम है जो कि आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में लर्न करवा देगा प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट. सो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी फ्रॉम द लंग्स पोर्शन. अब जो लंग्स हैं, लंग्स को हम बोलते हैं पल्मोनरी सिस्टम, बॉडी ऑर्गन्स को बोलते हैं सिस्टमिक सिस्टम. पल्मोनरी सिस्टम, सिस्टमिक सिस्टम. लंग्स को पल्मोनरी सिस्टम, बॉडी ऑर्गन्स को सिस्टमिक सिस्टम. अब लेट्स स्टार्ट स्टेप 1. लंग्स से ब्लड वेसल आ रही है. अगर आप ध्यान में दें, लंग्स से ब्लड वेसल आ रही है और ये हार्ट में जा रही है. हार्ट में जब भी ब्लड वेसल एंटर करती है हमेशा एट्रियम में करती है. अब हम अपनी स्टोरी लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं. ये ब्लड वेसल लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रही है. अब ये ब्लड कैरिंग, ये जो ब्लड वेसल है, इज इट कैरिंग ब्लड टू द हार्ट और अवे फ्रॉम द हार्ट? क्लियरली दिस ब्लड वेसल इज कैरिंग ब्लड टू द हार्ट. और ब्लड टू द हार्ट कैरी करने वाली ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं? वेन. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और इट इज कैरिंग ब्लड टू द हार्ट. अब जो ब्लड वेसल ब्लड कैरी करती है टू द हार्ट उसको वेन कहते हैं. और क्योंकि ये पल्मोनरी सिस्टम के साथ लिंक्ड है तो इसका नाम होता है पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी वर्ड वहां से आया. वेन क्यों बोला इसको? बिकॉज इट इज कैरिंग ब्लड टू द हार्ट. अब ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आया, एंटर्ड इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट विया द पल्मोनरी वेन. अब ये लेफ्ट एट्रियम से हार्ट गेट्स पुश्ड डाउन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द मिट्रल वॉल्व. लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. अब दैट मींस लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. अब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट पुशेस द अंदर. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है अंदर एक प्रेशर ऑफ, अब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एरिया ऑफ हाई प्रेशर इज क्रिएटेड इनसाइड द हार्ट व्हिच कॉजेस द ब्लड टू मूव आउट. अब ये जो ब्लड वेसल है ये कैरी कर रही है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स. नाउ व्हिच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? आर्टरी और वेन? क्लियरली द आंसर टू दैट इज आर्टरी, बिकॉज़ आर्टरी की डेफिनेशन ही ये बताई थी मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज नोन एज एन आर्टरी. और क्योंकि ये बॉडी ऑर्गन्स के साथ जॉइंट है तो जैसे लंग्स के साथ जॉइंट के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज किया था, बॉडी ऑर्गन्स के साथ जॉइंट के लिए मेन वर्ड यूज करना है. सो आर्टरी क्यों बोला इसको? बिकॉज इट इज कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. मेन क्यों बोला इसको? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बॉडी ऑर्गन्स और सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो द नेम ऑफ दिस ब्लड वेसल इज मेन आर्टरी, आल्सो नोन एज एओर्टा. सो यहां तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो दूसरी बात, जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन एओर्टा में जाता है, यहाँ पे एक और वॉल्व होता है नोन एज एओर्टिक वॉल्व. एओर्टा से एओर्टिक वॉल्व. तो यहां तक स्टोरी समझनी है दोबारा से. ऑक्सीजनेटेड ब्लड is carried from the lungs to the left atrium of the heart. Since it is being carried to the heart, the blood vessel is vein. Since it is linked to the lungs, it is called pulmonary. So hence the name of this vein is pulmonary vein. From the left atrium of the heart, the blood is then pushed down through the valve known as mitral valve into the left ventricle. When the heart contracts, it pushes the blood out from this blood vessel which carries blood away from the heart. And what kind of a blood? Oxygenated blood away from the heart to the main body organs. Why now main body organs? And this is known as systemic circulation. Now since this blood vessel is carrying blood away from the heart, it is called an artery. And since it is joined to the body organs, the word we use is for that is main. So main artery, also known as aorta. And aorta से word आ गया aortic valve जो यहाँ पर होता है. Again, we do not want the blood to flow back in because यहाँ पे तो oxygenated blood है और यहाँ पे deoxygenated blood होने वाला है because body organs उस oxygen को use करके